Good morning, dear students. Well, in the back video, you have been taught about the active and passive tenses. I have just told you about the rules, how many tenses are being changed in passive, and what are the helping verbs in passive as, etc. etc. You have been also told one thing, that was how to change subject to object and object to subject. You have been taught in that three rules. There are three important rules for changing active to passive. That was object to subject and subject to object changing using third form of the verb. And also you got one thing, that was using preposition before object in passive. So let's start some examples about that. Today I will show you some examples how we will change it and how our rules, what I told you, is working. So get here. Active to passive, you have been told about the three important rules. First was object to subject and subject to object changing. And the next one was using third form of the verb in passive. And other was using preposition by before object in passive. So well, hope you got these all three rules in the back video. Object to subject and subject to object changing using third form of the verb in passive and using a preposition by before object in passive. These are the three main important rules for changing active to passive. So we'll see how many tenses are being changed. That I told you 8 out of 12 tenses are being changed in passive. आप लोगों को बताया गया था कि 12 में से 8 टेंसेस पैसिव में चेंज होते हैं. So we will study about that. First is indefinite. We are studying here indefinite. I will teach you about the examples of present indefinite, past indefinite and future indefinite serially. You have to get it very carefully. So here I play hockey daily. You got I play hockey daily. So here I play hockey daily, it is statement sentence, or you can say affirmative sentence. So affirmative sentence, three rules what you have been told, you have to follow that. It is present indefinite affirmative sentence. You have to find out first of all subject and after that the object. Now the question is that कि आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे. आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा होगा जिसमें आपको स्टडी कराया गया था कि सब्जेक्ट जो होता है अबाउट व्हाट आर whom something is said in a sentences. आपको बताया गया था कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यहाँ पे जो भी बातें कही जा रही हैं वो आई के लिए कही जा रही है. सो आई इज द सब्जेक्ट हियर. और कार्य जो हो, तो यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है वो वर्ब है, और क्या खेलने का काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट, यानी कार्य क्या हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है. सो वर्क इज वर्ब and here it is subject who is working and here object what the work is being happened. So आप इसमें तीन चीजें पा चुके हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब. अब आपको जो पहला रूल्स था वो फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंजिंग. यू हैव टू टेक hockey on the place of subject and you have to take it I on the place of object. तो हम ले आते हैं यहाँ पे हॉकी. आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको एक तालिका बनाई गई थी जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज एम आर था. तो हॉकी इज अ गेम, इट इज सिंगुलर, तो आप कहेंगे हॉकी इज. नाउ द नेक्स्ट रूल दैट इज व्हाट यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव. तो आपको वर्ब यूज करना है, हॉकी इज प्लेड. अब आपको यूज करना था इस आई को ऑब्जेक्ट में बदलना, लेकिन उससे पहले पैसिव में ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन बाय यूज करते हैं, तो हम बाय लिख देंगे. और आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, उसके लिए भी आपको एक टेबल दिया गया है. तो हॉकी इज प्लेड बाय मी. It's really very simple. You have nothing to do. You have to follow these three rules for changing active to passive. Suppose कि ये अगर play की जगह played हो जाता तो आपका टेंस चेंज हो जाता.
टेंस क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर पास्ट इंडेफिनिट हो जाता तो यहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज की जगह वाज हो जाती एंड दैट इज द रूल। आप एकदम इजीली कर सकते हैं। अगर मान लो ये आई प्ले की जगह आई प्ले हो जाता यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती, इज या वाज की जगह विल बी हो जाता। बाकी सारे रूल्स सेम हैं। तो होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा कि ये तीन रूल्स यूज करके हेल्पिंग वर्ब्स को याद करके मेमोराइज करके यू कैन यूज इट वेरी इजीली हाउ टू चेंज एक्टिव टेक्स्ट। द नेक्स्ट इज कंटीन्यूअस। अब इंडेफिनिट हो चुके हैं, अब हम आते हैं कंटीन्यूअस पे। कंटीन्यूअस टेंस जो है वो दो ही के बनते हैं, आपको पता है, प्रेजेंट और पास्ट के। फ्यूचर कंटीन्यूअस के नहीं बनते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस के बनते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आ जाए we are speaking English. Here we are speaking English, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे we are speaking English में we जो है वो सब्जेक्ट है और क्या बोल रहे हैं, that is ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं। द फर्स्ट रूल व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो आप इंग्लिश का यहाँ आएंगे और ये हो जाएगा इंग्लिश। अब पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब थी वह कंटीन्यूअस के लिए इज एम आर प्लस बीइंग थी, प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए वाज एंड वर प्लस बीइंग। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसलिए इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, दैट इज द सेकंड रूल्स। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय, अपने तीसरा रूल भी फॉलो कर लिया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, सो इट्स वेरी सिंपल, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय अस। सो इट इज डन नाउ सपोज अगर ये आर की जगह वर्ब होता, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जगह पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता, तो वी हैव टू डू नथिंग, वी विल चेंज ओनली वन थिंग, दैट इज द पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव। तो इज एंड आर बीइंग की जगह वाज या वर्ब प्लस बीइंग हो जाता, तो इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय अस हो जाता, और कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। द रूल्स इज बिफोर यू। ओके, वेल नाउ we are coming to the last one, that is perfect. Perfect, that may be the present perfect, past perfect or future perfect tenses. These all three tenses are being changed in passive. तो present perfect, past perfect और future perfect के लिए पहले आपको present का उदाहरण देते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अगर आ जाए you have told a lie, आपने झूठ बोला है। You have told a lie, आपने झूठ बोला है। किसने? करता कौन है? You। क्या बोला है? A lie, that is object. Verb is here. आपको पता है परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। पैसिव में तो हमेशा ही लगता है। तो सिंपली आपको पहला रूल फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ले आते हैं यहाँ पे a lie, अब हैज हो जाएगा क्योंकि इसकी सहायक है। पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट की हैज बीन या हैव बीन होती है, और पास्ट परफेक्ट की हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव बीन और शायद होती है। तो सिंपली ये प्रेजेंट है इसलिए a lie has been, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है told, a lie has been told। अब हमें तीसरा रूल यूज करना है, by बिफोर द ऑब्जेक्ट, by। अब आप देख रहे हैं यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, दिस वन, a lie has been told by you। अब सपोज कि ये have की जगह had होता, इट मीन टू से प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट होता, तो हम पैसिव करते वक्त ये has been की जगह had been का यूज करते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेंस वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू रूल्स, according to the helping verbs we can recognize it। so ये सारी चीजों को आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है, और तीन रूल्स को हमेशा माइंड में सेट रखना है, दैट इज ऑब्जेक्ट
to object changing using third form of the verb and using preposition by before object in passive. So ये हुए आपके changes examples कि आप किस तरह से change करेंगे. आपको सभी present बताया गया, but I told you the way of changing in past and future also. Hope you got it very easily. You may have a screenshot of it, and in case of any trouble, as I told you many times, you can contact on my personal contact WhatsApp number 9452274315. Thank you.